Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are covering Vision IAS monthly current affairs magazine on this platform. So the month of December, the magazine for the month of December is published on the website, so you guys can check on that and download it. So here we are starting with the first section of December month, that is the polity and the governance, without wasting much of the time. And then we will be definitely covering the PT 365, and from the first Fab onwards, the budget of Government of India plus the Economic Survey of India. Correct? So this would be our priority, and if we get the time, we will definitely cover the previous months as well, as there were requests from number of students, also the science and tech in a combined way. So if we look at the topics of the first section, that is the polity and the governance, our first discussion would be regarding the Criminal Law Reform Act. As we all know, we had read this on the newspaper session. Three criminal laws are replaced by the new things, that is the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. We'll be talking about the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and Bharatiya Saksha Adhiniyam, that is 2023. The second topic is about the Crime in India 2022 report. The third is about the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioner Act 2023. Then it is about the Press and Registration of the Periodicals Act 2023, the Telecommunication Act 2023. Then we'll be talking about the abrogation of Article 370, expulsion of the lawmakers, National Cadet Corps, and there are certain news in shorts. For example, we'll be discussing about the Lok Yukta, impeachment process. We'll be comparing with respect to the US and India. The two bills on Jammu and Kashmir received the President's assent. The Post Office Act of 2023, the Fast Track Special Court Scheme, the Gram Manchitra, and the IRATA. So these are the topic of discussion which we'll be completing here. So let us start with the first topic. It talks about the Criminal Law Reform Act. That means here the president has given the assent to the three important bill which actually reform or overall the existing criminal justice system in India. So why we are talking about this? The nature of the crime has changed. It was different 50 years from now, 100 years from now, and now the nature of the crime is totally different. So here our objective is even to change the criminal justice system, the procedure which provide the punishment for the crime. We need to reform that. For that purpose, there are three new acts has come which has replaced the previous one. What are these acts? The number one is the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Act. It has replaced the Indian Penal Act of 1860. Second is the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. It has replaced the Code of Criminal Procedure Code, that is 1973. The Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023. It has replaced the Indian Evidence Act of 1872. So firstly, three bills were introduced in the parliament in August 2023, that means the monsoon session time. And these bills were ultimately sent to the Standing Committee on the Home Affairs. But there were many changes which were recommended. So actually उन recommendations को देख के अगर वो फिर से अगर वो बिल को एक एक को पास कराया जाता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता. तो दैट इज द रीजन कि होम मिनिस्टर ने क्या किया, सारे बिल को विड्रॉ किया. विड्रॉ करने के बाद एक नया बिल बनाया जिसमें सारी वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए गए थे जो कि कंपनी ने किए, और एक नया बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और वो बिल पास हो चुका है, उसको एसेंट मिल चुका है, वो एक्ट बन चुका है. सो दिस वाज द होल स्टोरी बिहाइंड इट. सो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म इन द क्रिमिनल लॉ? Number one is about the modernizing the criminal justice system. If we talk about the IPC, that is the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, and the large section of the CRPC, that is the Criminal Procedure Code. These are older than the independent India and do not properly reflect the current norms of the criminal jurisprudence. Second, there are number of
cases which are pending. Why? Because the nature is very complex. The legal procedures are very complex. The resources are very in the lacking manner. That is the reason. कम से कम 4.7 करोड़ जो केसेस है वो अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है. प्लस जो कन्विक्शन रेट्स है वो बढ़ रही है. सो दीज आर द रीजंस मेनली जिसकी वजह से वी आर थिंकिंग or actually we had changed or reformed the existing criminal laws. Now we can have a detailed discussion one by one. Number one is the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. This bill has replaced the Indian Penal Act of Code of 1860. So the obvious question is कि ये जो IPC है यानी कि जो Indian Penal Code है 1860 का उसका background क्या है. So 1860 से पहले अगर you must have read about the modern history books in the spectrum, that पहले charters होते थे, आपके पास regulating act होते थे, correct? The Companies Regulation Act था, हिंदू और मुस्लिम laws अलग थे, customary laws वगैरह अलग थे. 1834 में पहली लॉ कमीशन बनाई गई अंडर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले. इन्होंने बोला कि हमको लॉज को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, इनको एक कॉलोनियल गवर्नेंस सिविल सोसाइटी की तरफ ले जाने की जरूरत है. तो यहां से डिसाइड हुआ 1837 में एक इंडियन पिनल कोड के जरिए के लिए ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया. बट ये जो ड्राफ्ट था उन्होंने एग्जिस्टिंग जो इंडियन लॉज थे उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया. Now let's talk about the effect of 1857 rebellion. 1837 के अंदर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ, बट 1857 के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था. यू ऑल नो इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम बुक है आपने पढ़ा होगा. उस रिवॉल्ट के चलते हुए ये जो ड्राफ्ट है वो पास नहीं किया, इसका जो पासिंग था वो डिले हो गया. अल्टीमेटली 1857 के रिवॉल्ट के बाद में जब ब्रिटिश क्राउन ने पूरा डायरेक्ट कंट्रोल लिया 1858 में, इसके बाद 2 साल बाद में ही इंडियन पेनल कोड को इनेक्ट किया गया. 1862 के अंदर इट केम इनटू फोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट इनेक्टमेंट ऑफ द आईपीसी जो कि 1860 के अंदर आता है. तो ओवर द इयर्स द इंडियन पेनल कोड हैज बीन अमेंडेड टू ऐड द न्यू ऑफेंसेस, amended the existing ones and changed the quantum of the punishment. Several law commission reports have recommended amendments to the IPC on the subjects, including the offenses जैसे कि women के खिलाफ है, food adulteration है या फिर death penalty. तो ये जो नया आया है एक्ट भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड किया. यानी कि अगर कोई पिटी ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल मिलता है तो आप उससे कम्युनिटी सर्विसेज करा सकते हो, काम करा सकते हो, आटा पिसवा सकते हो जैसे कि पहले होता था. इवन मूवीज में इट वाज शोन. सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए जो एज है लाइक इट वाज 18 से 16, इसके अंदर डिफरेंस कर दिया गया है. देन सेडिशन जो चार्जेस है, सेडिशन जो लॉ था उसको हटा दिया गया है जिसके अंदर एक कॉलोनियल माइंडसेट दिखता था. सो व्हाट वाज सेडिशन? सेडिशन को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A के तहत लाया गया था 1817 में, और बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स को जेल भेजा गया था अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन. फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक वाज देयर, महात्मा गांधी वाज देयर एंड जवाहरलाल नेहरू वाज देयर. तो सेडिशन की जगह अब क्या लाया गया कि अगर कोई सेसेशन को एक्साइट करता है, आर्म रिबेलियन की बात करता है, सबवर्सिव एक्टिविटीज करता है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट है, या फिर कोई इंडिया के किसी की वजह से इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा होता है तो उसकी वजह से वो एक ऑफेंसिव चार्ज माना जाएगा. देन दे हैड ऑलरेडी also defined a terrorism that anything which intend to threaten the unity, integrity and security or economic security of the country, या फिर कोई भी लोग अगर टेरर स्ट्राइक कर रहा है चाहे इंडिया में और इन द फॉरेन कंट्री, ऑर्गेनाइज क्राइम भी इन्होंने इंक्लूड किया है, तो ये सारे एक ऑफेंसिव माने जाए. The second is about the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. इसके अंदर क्या हुआ है, आपके पास जो सीआरपीसी था दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, इसको रिप्लेस करके लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. Now what is the genesis or the evolution of CRPC? इसको भी 1861 में इनेक्ट किया गया था अंडर द ब्रिटिश रूल, और बाद में इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द फ्रेश कोड successively enacted in 1872 and 1882. So it had undergone several amendments. 1898 में हुआ,
1923 में हुआ और 1955 में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट था वो हुआ आपके पास 1973 में, दैट इज द सीआरपीसी 1973। तो इंडिया का जो लॉ कमीशन है, इन्होंने अपनी 41st रिपोर्ट के अंदर एक सिग्निफिकेंट रिवीजन किया कोड का, which ultimately led to the formation of CRPC 1973। तो क्या प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के? सबसे पहला, डिटेंशन ऑफ द अंडर ट्रायल, दैट इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर who have completed the one third of maximum period of imprisonment specified for such offense shall be released on the bond। अगर किसी भी इंसान को, किसी भी ऑफेंडर्स को उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका अगर उसने 1/3 पनिशमेंट कवर कर लिया है तो आप उसको बॉन्ड के थ्रू रिलीज कर सकते हो। या फिर कोई भी ऑफेंडर अगर उसने अपनी मैक्सिमम पीरियड का पनिशमेंट का हाफ पनिशमेंट कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको बेल के तौर पर रिलीज कर सकते हो। बट ये कंडीशन तब लागू नहीं होती अगर डेथ पेनल्टी का केस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस। Medical examination is allowed, forensic investigation, signatures and finger impressions, and timeline for the procedure. These things are also included in this. Third is about the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को। बेसिकली जो आपके पास एविडेंस होते हैं इंडियन कोर्ट में, चाहे सिविल से रिलेटेड हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो, इनको ये गवर्न करता है। ये आया था 1872 में। इसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, उन सारे लॉज को एक जगह कंसोलिडेट करना जो कि एविडेंस के साथ डील करता है। तो व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? सबसे पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका बैकड्रॉप ये था कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करता था। ये जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, इसमें डिजिटल रिकॉर्ड को भी एक तरह से एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, oral evidence, joint trials. So these all are added in the new one. Now, coming to our second topic, which talks about the Crime in India 2022 report. इसको जानने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, that is the National Crime Record Bureau, NCRB. So it is an organization responsible for collecting and analyzing the crime data as defined by the Indian Penal Code and special and the local laws. 1986 में इसको बनाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिकमेंडेशन किसकी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, टंडन कमिटी वाज देयर, प्लस द नेशनल पुलिस कमीशन जो कि 1977 और 1981 का था। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द नेशनल डेटाबेस ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस जो कि एनडीएसओ के अंदर आता है। एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है टू मैनेज द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ द ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑल द फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करता है। इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट रिलीज करता है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन द मिशन एंड विमेन चिल्ड्रन। नाउ व्हाट आर द की फाइंडिंग्स? अभी इनकी जो रिपोर्ट आई है उसका जो डेटा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ओवरऑल क्राइम की बात करते हैं तो 2022 में 58.24 लाख जो कॉग्निजेबल क्राइम है उसकी रिपोर्टिंग हुई है, और 2021 की कंपेयर करें 2021 से तो ये 4.5% डिक्लाइन हुआ। अगर वुमेन की अगर बात करते हैं तो 4.45 लाख क्राइम जो है रजिस्टर हुए हैं, और पिछले साल के कंपेयर में 4% ये क्राइम बढ़ा है। क्राइम अगेंस्ट द चाइल्ड, दैट इज 1.6 लाख केसेस जो है यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। पिछले साल के कंपेयर में 8.7% ये क्राइम बढ़ा है। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन, अराउंड 28,000 जो केसेस है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, और पिछले साल के केस में ये 9.3% जो है इंक्रीज हुआ है। क्राइम अगेंस्ट एससी एंड एसटी 13% वेंट अप एंड अगेंस्ट एसटी बाय 14.3%। सो ओवरऑल देखा जाए लास्ट ईयर के कंपेयर में इट हैज इंक्रीज। साइबर क्राइम 65,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि पिछले साल के कंपेयर में 24.4% ये बढ़ा है। सेम चीज एनवायरमेंटल रिलेटेड क्राइम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम लास्ट ईयर के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है। सो विद दिस डेटा इट इज क्लियरली विजिबल दैट द नेचर ऑफ द क्राइम हैज बीन चेंज्ड। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल क्राइम है, साइबर क्राइम है, वुमेन के खिलाफ जो क्राइम है, ये सारी चीजें, और ये पिछले साल के कंपेयर में बढ़ भी रही है। तो ये भी एक तरह से क्लियर कट प्रूफ है कि व्हाई वी नीड टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम।
क्यों हमको ब्रिटिशर्स के टाइम की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे हटके नए क्रिमिनल लॉ की तरफ आना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे बात होती है अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट। तो बेसिकली अभी एक रीसेंट केस हुआ है अनूप बरनवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर, इसको चूज कौन करेगा, इसको बनाएगा कौन, who will be choosing this प्राइम मिनिस्टर, किसके रिकमेंडेशन पे एक कमिटी की रिकमेंडेशन पे, जिसमें आपके पास प्राइम मिनिस्टर होंगे और पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो। तो इस कमेटी में 3 लोग हैं। सबसे टॉप पे आएंगे आपके पास प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं आपके पास पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन और फिर आता है आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो जजमेंट हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कमिटी है ये रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन का अंटिल द पार्लियामेंट इनेक्ट अ सेपरेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट। तो ये जो आपके पास केस था दैट इज द अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे और उस कमेटी में आपके पास प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो अपोजिशन पार्टी होती है पार्लियामेंट में उनके लीडर होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कब तक, जब तक पार्लियामेंट इस पे कोई अलग से लॉ नहीं बना देती। तो ये जो एक्ट है इसका सोल सबसे पहली बात तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है या फिर बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स है इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनकी सर्विसेज की कंडीशंस कैसी है और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो किस तरह से है। सिलेक्शन कमेटी में हमने बात कर ली, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है और आपके पास यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इनकी जो सैलरीज वगैरह है ये क्लियर कट यहाँ पे लिख रखा है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगा। अगर टेन्योर की बात करते हैं तो या तो 6 इयर्स या फिर जब तक उनकी एज 65 इयर्स तक की ना हो जाए। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ बिट ऑफ द स्टैटिक पोर्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 के अंदर आता है सबसे ऊपर आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाद में आपके पास नीचे क्या हो जाएंगे, आपके पास इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होते फॉर द एडमिनिस्टर एंड कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस। किस किस के इलेक्शंस, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये यहाँ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इनका इलेक्शन पे कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाता है। So what are the constitutional provisions? Article 324 clause 2. What are the concerns highlighting with the act? तो अभी तक के मेजर कंसर्न्स क्या है, बायसनेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, बिकॉज जो कमिटी है उसमें एक तरफ आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी मेंबर हो एक्सेप्ट द लीडर ऑफ अपोजिशन, जो मेजोरिटी जो पलड़ा है आपके पास वो सरकार की तरफ भारी है। तो मेजरली इनका जो इंडिपेंडेंसी है उस पर सवाल उठता है कि क्या ये सरकार की तरफ सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। Then let's come to the Press and Registration of the Periodicals Act 2023. इसका भी एक बार यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एसेंट दे दिया गया है और यहाँ पे इसको जो है एक्ट बना दिया गया है। इसका जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। 1799 के अंदर सबसे पहला सेंसरशिप आया था ऑफ द प्रेस एक्ट। द एक्ट वाज टू साइलेंस द प्रेस बिफोर अ पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया। However, it was retracted in 1818 by the Lord Hastings. Licensing the Regulation Ordinance, that is 1823, under the acting Governor General yani ki John Adams. The ordinance had a draconian provision that no one could start or continue to use a press without registration. Ram Mohan Roy's Miratul Akbar had to cease the publication due to this act. The Press Act of 1835 की बात करते हैं, that is under the Governor General Metcalfe. This act was seen as a ray of liberation and thus earned Metcalfe the responsible title of liberator of the Indian press. So basically जब भी क्वेश्चन आता है कि who is known as the liberator of the Indian press, obviously it was the General Metcalfe जिन्होंने Press Act 1835 लाया. Then comes your Licensing Act of 1857. जब 1857 के अंदर रिवॉल्ट हुआ था तब क्या हुआ था, ये एक्ट आया लाइसेंसिंग एक्ट। वाई? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने थे सरकार को। Press and Registration of the Books Act 1867 सेम थिंग और बाद में 1870 और 1983 में इसका अमेंडमेंट किया गया। तो बेसिकली अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि जो प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट है 1867 का
और प्रेस और रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल्स एक्ट जो कि इसी साल का है 2023 का, उसमें क्या डिफरेंस है? अगर हम पहले के एक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे बुक्स का भी रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड था, अब यहाँ पे नहीं है. Second, if we talk about the foreign periodicals, so there were no provision for registration of the foreign periodicals. But यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया है. डिक्लेरेशन फॉर द प्रिंटिंग प्रेसेस, यहाँ पे आप पहले डीएम के सामने आपको जाना पड़ता था, अब एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो. तो इट हैज मेड इजी राइट नाउ, राइट. तो इसका जो प्रॉफिट है या फिर जो बेनिफिट है वो क्या होगा? सबसे पहला है अबाउट द डिजिटलाइजेशन. Second is the fast tracking the process, decriminalization. Now, the next topic is about the Telecommunication Act 2023. 138 years पुराना हमारे पास इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है. इसको रिप्लेस करके फाइनली हमारे पास आता है एक नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का. इसके अंदर हम टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करेंगे एंड प्रोवाइड अ न्यू लीगल फ्रेम फॉर द टेलीकॉम सेक्टर. द एक्ट रिप्लेसेस द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885. इससे पहले जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था 1885 या फिर जो इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट था 1933, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोसेशन एक्ट 1950, इन सभी को रिप्लेस करेगा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. और इसी के साथ 1997 का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसको भी ये अमेंड करेगा. तो थोड़ा सा इसका हम ब्रीफ टाइमलाइन देखते हैं. 1850 के अंदर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया था जिसने विच वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैलकाटा. फिर आया था आपके पास इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885. इट बिकेम द प्राइमरी लेजिस्लेशन. 1933 के अंदर इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट आया था. 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 और फाइनली 2000 के अंदर हमारे पास आता है आईटी एक्ट. और इसी आईटी एक्ट के अंदर आपके पास इंटरनेट को बार बार बैन किया जा रहा है इंडिया के अंदर. सो इंटरनेट बैन इज अंडर द आईटी एक्ट ऑफ 2000, राइट, जो फाइनली अब अमेंड हो ही जाएगा. तो व्हाट आर द की प्रोविजन? सबसे पहले यहाँ पे स्पेक्ट्रम एलोकेशन के बारे में बात करिए रिगार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, disaster management, weather forecasting, transport, satellite. So what is about the appointment to the TRI? So या तो किसी को 30 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो तो इट कैन सर्व एज अ चेयरपर्सन. With 25 years of experience, it can serve as a members. Adjudication process, protection of the users is there. Right of way, power of interception, authorization, regulation of OTT. So प्राइवेसी के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा जो कंसर्न है जो कि सामने आ रहा है, इस पे वर्क करेंगे. Then the next topic is about the abrogation of Article 370. You all know एक historical amendment किया गया था और आर्टिकल 370 को हटाया गया. इसके चलते आर्टिकल 35 है ऑटोमेटिकली हट गया और इसी के चलते जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया. ठीक है, तो उसी का इन्होंने पूरा एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये चीज बताया बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अभी अभी इसको कंफर्म किया है. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कंफर्म किया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने 2019 में डिसीजन लिया था रिगार्डिंग द रिपीलिंग ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो बिल्कुल सही डिसीजन था. तो इसको एक वैलिडेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला. इसी वजह से ये पूरा जो ब्रीफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया. 5 अगस्त 2019 को जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसपे था कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. इस ऑर्डर में लिखा था कि अब से इंडिया का जो संविधान है वो पूरी तरह से हर एक स्टेट में लागू होगा इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के प्रोविजन थोड़े से स्पेशल स्टेटस मिलता था और वो अलग होते थे. बट इस ऑर्डर के बाद में जो कंडीशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे इंडिया में लग रहे थे वो भी यहाँ पे भी लगेंगे. So this effectively meant that all the provisions that form the basis of a separate constitution for Jammu and Kashmir वो abrogate हो गए. तो इसी के साथ आपके पास आर्टिकल 35A भी जो है ऑटोमेटिकली चला गया जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट था. पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको इनेक्ट किया और स्टेट को बाइफरकेट किया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. So the petitioners had challenged the constitutionality of these actions of the union. तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं. जम्मू एंड कश्मीर
पाकिस्तान और इंडिया के एकदम सेंटर पे था, और जब दोनों का डिवीजन हुआ तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में आया, बिकॉज इसकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बट जो लीडर थे वो हिंदू थे, दैट इज महाराजा हरि सिंह। तो काफी ज्यादा यहाँ पे दंगे फसाद होने लगे। तो अल्टीमेटली महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, यानी कि हम इंडिया का पार्ट है, हम इंडिया में डोमिनियन ऑफ इंडिया को जो है एक्सेप्ट करते हैं, बदले में कुछ प्रोविजंस जो है, कुछ स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे साइन हुआ था टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 26 जनवरी 1950 को, जिसपे टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अंदर जम्मू कश्मीर को लिया गया। और इसी आर्टिकल 370 में तीन चीजें थी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़ के पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज, यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर और फाइनेंस कम्युनिकेशन को छोड़ के बाकी कोई भी मामले में अगर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट को जम्मू एंड कश्मीर यानी तो वहाँ के जो स्टेट है या राज्य है उनको कॉन्करेंस लेना पड़ेगा। ये एक्चुअली हट गया है, अब पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लागू है। और इसी के साथ आर्टिकल 35 जो है वो बात करता था कि वहां के परमानेंट रेजिडेंट के बारे में जो स्पेशल राइट है, प्रिविलेजेस है उनके बारे में, जिसमें प्रॉपर्टी राइट वाज वन ऑफ द। तो अब जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो वैलिडेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें सबसे पहले बात हुई है कि कोई इंटरनल सुवरेनिटी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो बाकी स्टेट में लगेगा वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लगेगा, देयर इज नो इंटरनल सुवरेनिटी टू इट। नेचर ऑफ आर्टिकल 370 ये भी टेम्पररी है और ट्रांजिशनल प्रोविजंस यहाँ पे लगेंगे, राइट। तो यहाँ से पूरा एक वैलिडेशन जो है इसको मिल चुका है। Then the last topic is about the expulsion of the lawmakers. ये topic will be covering with the news and short portion of okay wait a minute, expulsion of the lawmakers अगर छोटा हुआ तो हम इसी के साथ complete कर लेंगे, expulsion of the lawmakers. Then okay there are 2-3 topics which will be covering with the news and short, part 2 के अंदर आएगा, and then we'll be done with the polity and we'll be moving towards the international relations. Okay, and so sorry because my throat is not well, so the voice is a bit slow. It will hardly take 1 or 2 days and we'll be back to the same enthusiasm and energy as we were before. Okay. Till then, keep supporting us, keep subscribing us. Thank you so much.